تو ناظرین آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نئے مہمان کی طرف۔ ہمارے پاس نغمہ نور ود نور کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں عظیم مذہبی سکالر، مفکر اسلام، عظیم آواز کے مالک، محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا قاری عدنان سلطانی صاحب آف گجرانوالہ، مقبول عرب و عجم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دین کی بے شمار خدمات لی، تو آپ نے ہمیں اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے ہمیں کچھ ٹائم عنایت فرمایا۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم آپ کی طرف پڑھتے ہیں اور ہم آپ سے بھی ان پاک ہستیوں کا ذکر سنیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سلطانی صاحب، ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے ہمیں آپ نے کچھ ٹائم دیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ ذکر ایک چل پڑا ہے مولا حسین علیہ السلام کا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اس پاک گھرانے کے اس پاک ہستی کا ذکر سنائیں، تاکہ ہم وہ ان پاک ہستی کا ذکر سن کے رب کی انوار و تجلیات کو ہم سمیٹ سکیں، ہم بھی اور ہماری آڈینس بھی۔ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں قبلہ فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر سید نور الحسن شاہ صاحب، آپ کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے چینل نغمہ نور ود نور میں ہمیں شمولیت کا موقع دیا۔ ہم حاضر خدمت ہے ماشاءاللہ، کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے ہم بھی کہ الحمدللہ ہر روز آپ کے اس ماشاءاللہ مرکز کے اندر نغمہ نور ود نور کے حوالہ سے ماشاءاللہ بہت پیغامات لوگوں کی طرف منتقل کیے جا رہے ہیں، کبھی نماز کے متعلق، کبھی قرآن کے متعلق، کبھی روزے کے متعلق، ہر یعنی کہ ماشاءاللہ جو چیز اہل عوام الناس کو ضرورت ہے آپ ماشاءاللہ بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے کائنات صدقہ سجانے کریمین کے نام پاک حضور کا اللہ کریم آپ کی یہ کاوش اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے دوست احباب نقابات رات اسراء خان مصطفیٰ آپ کے ہاں یہاں مرکز میں تشریف لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں الحمدللہ آپ کی محبتوں سے ماشاءاللہ آپ نے جو جملے مجھ بندہ چیز کے لیے بولے، میں تو گناہ گار سیاکار آدمی ہوں، لیکن یہ آپ کی محبت ہے ماشاءاللہ، آپ نبی کے اولاد ہیں، اور میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ظلم کیا کر سکتا ہوں۔ چلے آپ کی محبت کو برقرار رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ المرء مع من احب الیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ بابا جب سب پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر۔ نبی کا نام آئے، نبی کا نام آئے جوم جاتے ہیں دیوانے، حلال خون ہے شامل وجود کے اندر۔ الحمدللہ آج ہمارے بچے بھی حضور کی آل کی محبت کے منظر ہیں ماشاءاللہ۔ جس طرح قبلہ مجھ سے قبل نقیب محفل عظیم شخصیت بھائی محمد راول حسینی رضوی صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کی، اس کے بعد فخر گجرانوالہ عظیم شناخان مصطفیٰ جناب بھائی محمد علی حسن قادری صاحب ماشاءاللہ، اور میرے سر کے تاج فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر سید نور الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا حکم مانتے ہوئے بندہ نہ چیز کچھ عرض کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب آبادی وقات کیونکہ دامن میں وقت نہیں ہے کہ بات طویل ہو جائے، میرے اور آپ کے آقا علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان بن عفان کے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا نے ارشاد فرمایا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں کائنات میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا
इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया लोगों मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, कोई उजरत नहीं तलब करता। ए बात ज़ेनशीन फरमा लेना, मैं दो चीजें आप लोगों के अंदर छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरा अपनी आल छोड़ के जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान के साथ भी मोहब्बत कर रहा और मेरी आल के साथ भी मोहब्बत कर रहा। हज़रात मोहब्बत का तकाजा क्या है? मेरा मुस्तफा की हदीस मुबारक अलमर्रु मन अहब्बा इलैहि, फरमाया कि जो बंदा जिसके साथ जितनी मोहब्बत करेगा उसके साथ उठाया जाएगा। अल्लाह, बेशक बेशक। अब हमारा अकीदा क्या है सुन्नत जमात का? हम कुरान से भी मोहब्बत करते हैं, बेशक, नमाज से भी मोहब्बत करते हैं, बेशक, वालिदैन से भी मोहब्बत करते हैं, उस्तादों से भी मोहब्बत करते हैं, और जिस बात का बुजुर्गों ने हमें दर्स दिया है हम उनकी भी उनका भी अदब एहतराम करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, चूंकि तज़किरा हो रहा था आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो इंशाअल्लाह इस बात को आगे ले जाने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नल हसना वल हुसैन सीद शबाब अहलुल जन्नह, एक मकाम पर इरशाद फरमाया, दूसरे मकाम पर मेरे आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा आति हुसैना सबरन व अजरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा मालिकुल मौला, तेरा नबी होकर तेरी पाक बारगाह में दुआ कर रहा हूं, मेरे हसन को और मेरे हुसैन को, हसन को सब्र भी अता फरमाना और इसका अजर भी अता फरमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये जो अहले बैत है, जो बंदनी के साथ मोहब्बत करता है, हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका फरमाने वाली शान है। आप फरमाती है लोगों, जो बंदा मेरे बेटों का तज़किरा करेगा, जो बंदा मेरी आल का जिक्र करेगा, मेरे बेटों का तज़किरा सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाए, फरमाया उसके आंसू जाया नहीं जाएंगे, कल क़यामत का रोज होगा रब की बारगाह में फातिमा ज़हरा की शफ़ाअत करेगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सय्यदा फातिमा ज़हरा। कौन फातिमा? मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी सैयदतुन निसाइल आलमीन हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी अम्मी जान हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रब करीम की पाक बारगाह में रिज़ा पेश करती है, मालिकुल मौला तेरी बंदी का एक सजदा मुकम्मल नहीं हुआ, तेरी रात अल्लाह। और कौन आता है? इमाम हुसैन। सुनिए, समात फरमाइएगा हजरात, एक दिन अमीरुल मोमिनीन है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह, और आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आपका बचपन है। इधर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला उनका बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, उनका भी बचपन है। और इधर इमाम साहबीन राग में दोषे मुस्तफा हजरत सैयद इमाम अली मकाम, आपका भी बचपन है। अब बचपन का आलम क्या है? आज हमारे बच्चे भी खेलते हैं, उस वक्त इमाम साहबीन आप भी खेल कूद में मसरूफ हैं। अल्लाह। और अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे को देखा तो कहा तू हमारे गुलाम का बेटा है। वाह 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 वाह, तू हमारे गुलाम का बेटा है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के बेटे ने जब ये अल्फाज सुने तो उन्हीं कदमों वापस घर चले जाते हैं, जहां अर्ज करते हैं अब्बा हजूर आप अमीरुल मोमिनीन नहीं है, आप वक्त के हाकिम नहीं है कि आप इमामुल अंबिया ताजदार अंबिया हबीब किबरिया मेरे और आपके आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका अमीर मुंतखब नहीं किया। और हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाते बेटा मुंतखब किया, क्या बात है? कहा अबू हुजूर आज मैं बाहर खड़ा था, इमाम हुसैन तशरीफ लाए, इमाम हुसैन ने कहा तू हमारे गुलाम का बेटा है। कहा बेटा आज रहमत मोहम्मदी जोश में है। वाह 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 वाह, आज रहमत मोहम्मदी जोश में है, तो ऐसा कर चला जा, कलम ले जा और एक कागज ले जा और जाके आका हुसैन की पाक बारगाह में रिदा पेश कर। अब कौन हुसैन है? वो हुसैन है जिसको मेरे मुस्तफा अपने कंधों पे उठाते हैं। वाह वाह वाह, वो हुसैन है जिसे मेरे मुस्तफा अपने सीने पे बिठाते हैं। वो हुसैन है जिससे मेरे मुस्तफा के कंधों पे सवार है। सैयद अबू बकर सदीक ने जब मुस्तफा की तरफ देखा, हज़रत उमर फारूक ने मुस्तफा की तरफ देखा और कहा आका आज सवारी बड़ी सोहनी है। मेरे मुस्तफा ने कहा तुझे सवारी नजर आ रही है, तुझे मोहम्मद के कंधे पे जो सवार है वो नजर नहीं आ रहा। वाह 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 वाह, ए हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है, नोक नेज़े पर तेरा ए हुसैन कुरान सुनाना याद है। अगर आज मसाजिद के अंदर कुरान है, मसाजिद के अंदर अदान है, अगर आज मिंबर रसूल का तकद्दस कमाल है तो सब मेरी मुस्तफा की आल का सदका है। मेरे मुस्तफा की आल की मोहब्बत का ये सदका है। अगर आज खुद भूखे रहे औरों को खिलाते रहे, कितने फैयाज है मोहम्मद के घराने वाले। कितने फैयाज है मोहम्मद के घराने वाले। अगर आज मैं अपने भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आज नगमा नूर विद नूर के
प्लेट फॉर्म से इस बात का आगाज किया जा रहा है। मेरे आका ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। अरे वो कौन सी चीजें हैं? इमामुल अंबिया, ताजदार अंबिया, वद्दुहा के चेहरे वाले, बल्लैल की सुबह वाले, माता कल बासर के काजिल वाले, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथों वाले, अलम नस्ला के सीने वाले, यासीन के चेहरे वाले, तोहा की शान वाले, लामरुका की प्यारी प्यारी जान वाले, सदाकत काफर मानने वाले, उस्माने गरुड़ को सहाबत काफर मानने वाले, उमर बरूक को ताले के साकार बनाने वाले, मौला कायनात को शुजात का बेताज बादशाह बनाने वाले मेरे आका, तेरे आका ने फरमाया लोगों अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। या सैयदी या रसूल अल्लाह, फिदा काबी हम या रसूल अल्लाह, हजरत हमारे बादशाह आपको कुर्बान। आका इरशाद फरमाइएगा, मेरे आका का इरशाद है, तेरे आका का इरशाद है। आका ने फरमाया सबसे पहले अपनी औलाद को कलमा तैयबा सिखाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दूसरा फरमाया अपनी औलाद को मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अल्लाह। आज हम अपने बच्चों को क्या देते हैं? हाथ में मोबाइल दे देते हैं और अजान का वक्त होता है, जमात का वक्त होता है, जो फर्ज हम पे किया गया है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और वो कुरान जो मुस्तफा की अतहर पे अल्लाह करीम ने नाज़िल फरमाया, इसकी बहुत फ्यूज़ो बरकत है। लेकिन मेरे मुस्तफा के गुलामों तो जो चारों दामन वक्त रखी है, बात तवील होती जा रही है। हजूर के गुलामों, मेरे आका ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, कुरान, कलमा तैयबा, और तीसरा फरमाया मेरी आग की मोहब्बत सिखाओ। अल्लाह अल्लाह। किसी के एक आंसू से, किबला ये मैं आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ, किसी के एक आंसू से हजारों के दिल धड़कते हैं। किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। हजरात, तो हजरत सैयदना इमाम अली मकाम ने फरमाया कि तू हमारे गुलाम का बेटा है। अब उमर फारूक का बेटा घर तशरीफ लाता है। कहा बाबा आप अमीरुल मोमिनीन नहीं है? कहा बेटा अमीरुल मोमिनीन हूं। तो कहा फिर बाबा आज आका हुसैन ने ये अल्फाज बोले हैं। हजरत सैयद उमर फारूक ने कहा बेटा ऐसा कर, आज हमारी किस्मत खुल गई है, आज तूने हमें अपनी गुलामी में खुद तस्लीम करवा लिया है। तो ऐसा कर, ये कागज ले जा या कलम ले जा, आका हुसैन की पाक बारगाह में जाकर करना। आका जो आपने पहले अल्फाज फरमाए थे वो इस कागज पे तहरीर फरमा देना। जब हजरत उमर फारूक का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर आका हुसैन की बारगाह में पहुंचता है, आका हुसैन अपनी मोहब्बत में तशरीफ फरमा है। आका हुसैन ने कहा मैंने जब पहले भी कहा है तू हमारे गुलाम का बेटा है। कहा हजूर पहले तो आपने कहा था ना, अब जिसको आपने कहा था ना उन्होंने मुझे आपकी बारगाह में भेजा है, तो आप ऐसा करना, इसमें तहरीर फरमा दे। तो ठीक जब तहरीर फरमा दिया गया, हजूर के गुलामों, हजूर के साथ मोहब्बत करने वालों, हजूर की आल के साथ मोहब्बत करने वालों, हजूर इस्लाम के नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी को बसर करने वालों, ये मैं आपसे मुखातब होकर और बहुत ही ऐसे तरीके के साथ ये जुमला आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। आप देखिए वो वक्त के अमीर हैं, वाह 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 वाह, ये भी वक्त के बादशाह हैं। अल्लाह, कमाल इनका भी वराल वरा है, शान उनकी भी वराल वरा है। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला हो जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कहा आका आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है, किताब सच्ची नहीं है, ईमान सच्चा नहीं है? मेरे आका ने कहा सच्चा है। तो कहा आका आज हम जो है ना खुलकर इबादत करेंगे, खुलकर नमाज अदा करेंगे। और हज़रत उमर फारूक ने ऐलान किया लोगों है कोई उम्र की तलवार से जो अपनी औलाद को अपने आप को बेवा करना चाहता है, अपनी औलाद को उम्र की तलवार से बचाना चाहता है, तो आओ मुस्तफा की पाक बारगाह में हाजिर खिदमत, मुस्तफा की पाक बारगाह में हाजिर। वो अमीरुल मोमिनीन है जो रात को गश्त करते हैं, उनकी हुकूमत आज तक कभी कोई ऐसा बंदर रहा ही नहीं है। वक्त आया एक घर रात का टाइम है, अमीरुल मोमिनीन सफर फरमा रहे हैं, रात गश्त कर रहे, देखा क्या एक घर से रोने की आवाज है। तो अपने गुलाम से कहा पता कर वजह क्या है, रोने की क्या वजह है। जब वजह मालूम की गई तो कहा माले गनीमत से उनके घर माल नहीं पहुंचा, आज भूखे हैं जिसकी वजह से वो रो रहे हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल गनीमत जाते हैं और वो वहां से बड़ा माल और अपने कांध पे उठाया, उस औरत के हाथ घर तशरीफ लाए, उसके जब घर में सामान दे दिया तो कहा बहना बताया आप रोती क्यों है? कहा आज उमर की अदालत से उमर के माल गनीमत जो जमा हुआ उसे हमारे घर खाना क्या सामान मुहैया नहीं हुआ था, इसलिए। तो कहा अगर तो फिर तुम रोती क्यों हो? कहा मैं अल्लाह की बारगाह में ये शिकायत करूंगी या अल्लाह तेरा बंदा था जिसको तूने इख्तियार दिया था, उसकी इख्तियार में मैंने एक रात ऐसी गुजारी है मेरे घर में खाने को नहीं था। अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो है अमीरुल मोमिनीन, वो है रियासत मदीना बनाने वाले, वह मुस्तफा की गुलामों के साथ मोहब्बत करने वाले। क़िबला मैं बयान कर रहा हूं, जब तहरीर हो गया लिखा गया तो हज़रत उमर फारूक का बेटा घर तशरीफ लाया।
तो कहा अबू हुजूर ये मैं चिट्ठी लिखवा के ले आया हूँ, अमीर उल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब क्या कहते हैं, बेटा एक वसीयत करना चाहता हूँ। कहा बाबा जी फरमाइएगा। कहा जब मैं दुनिया से जाऊं, वाह 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 वाह, जब मैं दुनिया से जाऊं, मेरा जनाजा पढ़ा जाए और मुझे लहद में उतारा जाए, अल्लाह तो ये जो चिट्ठी आका हुसैन ने तुझे तहरीर करके दी है, इसको मेरे साथ रख देना। वाह कहा वाह बाबा वाह इसकी वाह, वजह क्या है? कहा बेटा जब कब्र में जाएंगे सवाल किया जाएगा, मैं रब्बु का मा दीनु का मा कुंत तकुल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, पूछा जाएगा। लेकिन जब वो मुझसे सवाल करेंगे ना, तो मैं उनसे ये कहूंगा जिनके मुतल्लक आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो उन्होंने तो मुझे अपनी सनद जो है ना सर्टिफिकेट साथ दे के भेजा हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हजरत सुभान अदीमुल बरकत इमामुल कलाम कलामुल इमाम आप फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने सब वाले, पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू वाह, जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात में इन्हीं अल्फाज के साथ अपने गुफ्तगू को एंड करता हूँ। अल्लाह ताला हाज़िरी कबूल फरमाए। जुमला शाह अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा के दिल का चैन जिंदा है। अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा के दिल का चैन जिंदा है, जब सुनो अजान तो समझ लेना हुसैन जिंदा है। नाजरीन निहायती अहसन अंदाज के साथ और मुदल्लल गुफ्तगू फरमा रहे थे इज़्ज़त आप अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना अदनान सुल्तानी साहब ऑफ गुजरांवाला। आप निहायती खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो आइए इसी के साथ हम अपने सेगमेंट का अख्ताम करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर आपके सामने हम नए मेहमान के साथ, नए मजहबी स्कॉलर, नए नात खान, नए कारी साहब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।